Good morning students. In last video we discussed the ideology accepted by India for its development. Student, there are two types of ideology before India, the liberal capitalist and socialist model. Students, India adopted a mixed type of ideology for its development. Students, we have already talked that India set up a planning commission for its economic development. We have talked about this, and two ideologies of left and rightist we have already talked. Now students, we are going to start a new topic, the early initiatives. Students, as in the USSR, the Planning Commission of India opted for 5-year plan. Students, 5-year plan was opted from USSR. Okay students, 5-year plan prepared by Planning Commission. This theory adopted in India from USSR ideology. Okay, and we set up a Planning Commission in March 1950 by a simple resolution of Indian government. Okay student, now the for all its income, and what does government do in planning? For all its income and expenditure, central and state government divided their budget into two parts, non-plan budget and plan budget. Students, government, it is central government or state government prepared their plan for their next planning for their income and their expenditure. There are two types of budget, non-plan budget and plan budget. What do you mean by non-plan budget? Budget that is spent on routine item on a yearly basis expenditure and income shows the non-plan budget yearly. Okay, and plan budget, what do you mean by plan budget? Budget that is spent on a 5-year basis. Okay, 5-year प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो एक्सपेंडिचर एंड इनकम किया जाता है होता है एज पर द प्रायोरिटीज फिक्स्ड बाय द प्लान. जो प्लान के अंदर प्रायोरिटी, इट मीन्स जिसको हम प्राथमिकता दें कि इस काम पर हमें इतना खर्चा करना है, हम सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किस पे करेंगे. मान लीजिए एजुकेशन ले लिया, एजुकेशन में हमें करना है कि हम हमारे टोटल ओवरऑल बजट का इतना % हमें एजुकेशन पर, हेल्थ पर, मेडिकल पर, जो भी हम लोग प्रायोरिटी डिसाइड करें उसके अकॉर्डिंग खर्चा हम करते हैं, मतलब कि हमारी गवर्नमेंट करती है. उसको हम कहते हैं प्लान बजट. उसमें हर एक सेक्टर के लिए फिक्स होता है कि इतना % हमें इस सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में करेंगे, हेल्थ सेक्टर, मेडिकल सेक्टर में करेंगे, एजुकेशन में करेंगे, वेलफेयर के लिए करेंगे. तो ये सारी चीज उसमें डिसाइड होती है ऑलरेडी ही, उसे हम कहते हैं प्लान बजट. तो बजट जो है वो डिसाइड किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर किया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, द objectives of the planning commission. What are the objectives of planning commission? प्लानिंग कमीशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, प्लानिंग कमीशन को क्यों बनाया गया और इसके क्या फायदे हैं, इन्होंने क्या सोच करके बनाया, उद्देश्य क्या है इसके. ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लानिंग कमीशन. द प्लानिंग कमीशन was set up in March 1950 by a simple resolution of the government of India. The state shall strive to promote the welfare of the people. The first objective is state, it means government, try to promote the welfare of people. Okay, it means government works in the favor of people for their well-being. उनकी
पीपल के लिए, लोगों के लिए, जनता के लिए, उनकी भलाई में जो काम होगा वो काम सरकार करेगी। पहला उद्देश्य इसका ये था। देन देयर शेल बी सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। देयर मस्ट बी पॉलिटिकल जस्टिस, देयर मस्ट नॉट बी एनी discrimination on the basis of caste, religion, gender, language, etc. Okay. Second thing, that citizens, men and women, equally have the right to an adequate means of livelihood. Both men and women, they have the right to earn equally and adequate means of livelihood, कि उनको समान रूप से जो है अर्निंग करने के अवसर भी मिले और अर्निंग करने के सोर्सेज भी मिले। ओके, ये काम भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट थिंग, दैट द ओनरशिप एंड द कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सबसर्व द कॉमन गुड्स, कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का, किसी एक आदमी का कंट्रोल उस पर नहीं होना चाहिए और सभी लोगों को फैसिलिटीज मिले। ओके, नेक्स्ट थिंग, द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन टू द कॉमन डिटरमाइंड, कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका भी कुछ हाथों में कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, वो भी कुछ लोगों के हाथों में नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स हमारी जो इकोनॉमी वो देश के कुछ लोग मिलकर के नहीं चलाए, बल्कि उसके अंदर सभी लोगों का इक्वली कंट्रीब्यूशन हो। इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए होना चाहिए कि रिसोर्सेज जो हैं वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज मस्ट बी इक्वल इन फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Okay, now students, the planning, the first planning, the first 5-year planning, the second 5-year planning, and the third 5-year planning started, and the first planning started from 1951, but after the third planning there are some obstacles, there are some problems. Because of those problems, our leaders dropped the 5-year plans, and it is known as the plan holiday. What do you mean by plan holiday? Plan holiday क्या है कि years in which no 5-year plan is adopted due to the various reason, but annual plan are followed in is a plan holiday. क्या हुआ? Because of some reason, कुछ कारणों से, वो कारण क्या थे अभी अपन आगे देखेंगे, कि कुछ कारणों के वजह में क्या हुआ कि 5-year प्लान इम्प्लीमेंट नहीं हो सके कुछ परिस्थितियों के कारण। ईयर्स इन विच, जिन ईयर्स के अंदर, जिन सालों में 5-year प्लान को हम अडॉप्ट नहीं कर सके ड्यू टू वेरियस रीजन, उसके बजाय क्या किया गया, बट एनुअल प्लान्स, हमें एनुअल प्लान्स प्रिपेयर करने पड़े उसके लिए, और उसी चीज को हम क्या कहते हैं, प्लान हॉलीडे। जो थर्ड 5-year प्लान के बाद में ये सिचुएशन आई और उसी को हमने क्या कहा, प्लान हॉलीडे। जब हमने एनुअल प्लान यूज किए, अपनाए, ठीक है। अब रीजन क्या क्या रहे और ये कब कब रहे? इन 1966-67, इन 1966-67, 19 फर्स्ट 1-year plan, then second 1967 to 68, and third 1968 to 69. रीजन्स क्या थे इसके? फर्स्ट ऑफ ऑल वॉर। स्टूडेंट्स, एज यू नो, जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया फेस्ड wars in 1962 with China and 1965 in Pakistan. So India could not use its resources in economic development. It had to use its resources in war.
अपने रिसोर्सेज का यूज इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंडिया नहीं कर सका, और इसके बजाय क्या हुआ, उनको वॉर में करना पड़ा। नेक्स्ट थिंग, ड्रॉट 1965-66 में सूखे की स्थिति, अकाल पड़ा, उसकी वजह से भी नहीं हुआ। नेक्स्ट, एक्सटर्नल सेक्टर्स क्राइसिस। एक्सटर्नल सेक्टर क्राइसिस में क्या हुआ कि इन सेकंड 5 ईयर प्लानिंग वी फोकस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन पर हमने जोर दिया, और बिकॉज ऑफ दिस द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी डिक्लाइंड। इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो गई इसके कारण से। तो दीज आर द रीजन्स वी हैव टू अडॉप्ट द ईयरली प्लान्स। ये रीजन थे जिसकी वजह से हमें ईयरली प्लान यूज अडॉप्ट करने पड़े, और उन्हीं के कारण उसी चीज को हम क्या कहेंगे, प्लान हॉलीडे। स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग। स्टूडेंट्स, फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 1951 एंड एंड्स इन 1956। 1951 से चली, 1956 इसका टाइम पीरियड था। इसमें किस चीज पर फोकस किया गया? फोकस किया गया टू गेट कंट्रीज इकोनॉमी आउट ऑफ द साइकिल ऑफ पुअर्टी। एट दैट टाइम आर इकोनॉमी वाज बैकवर्ड, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी हमारे पास, हमें एकदम डेवलप इकोनॉमी की ओर जाना था। तो क्या हुआ कि गरीबी, पुअर्टी का जो साइकिल था हमारे यहाँ से, उससे देश को बाहर निकालना, यही इसका मेन फोकस था। इसी चीज पर मेन फोकस किया गया कि कंट्री को पुअर्टी से बाहर निकाला जाए, गरीबी से बाहर निकाला जाए। ठीक है। सेकंड फोकस इसका क्या था कि डेवलपमेंट स्पीड शुड बी स्लो। ये जो प्लान ड्राफ्टेड बाय, ये जो प्लान ड्राफ्ट किया गया था, बनाया गया था, किसने बनाया? के.एन. राज, एक यंग इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट की जो स्पीड है इंडिया को स्टार्टिंग में थोड़ी स्लो रखनी चाहिए, हमें धीरे धीरे चलना चाहिए। तो फोकस किस बात पर दिया गया कि एक तो हमें देश को इकोनॉमिक जो साइकिल, पुअर्टी वाली साइकिल, उससे देश को हमें बाहर निकालना है। इट मीन्स इकोनॉमी आउट ऑफ साइकिल ऑफ पुअर्टी, हमारी इकोनॉमी को गरीबी से बाहर निकालना। एंड देन एड्रेस्ड मेनली द एग्रारियन सेक्टर्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन डैम्स एंड इरिगेशन। अब एज यू नो, इंडिया इज ए एग्रीकल्चरल कंट्री। इंडिया एग्रीकल्चरल कंट्री है, इट्स इकोनॉमी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर पर इकोनॉमी बेस है। तो हम इकोनॉमी को पुअर्टी से बाहर कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमारे लिए जरूरी था कि हम एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करें, एग्रीकल्चर में हमें इन्वेस्ट करना था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का सबसे इम्पोर्टेंट जो फोकस था कि इन्वेस्ट में कहाँ करना है, तो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कहाँ करने के लिए कहा गया? एग्रीकल्चर पर, और एग्रीकल्चर रिलेटेड थिंग्स पर। इन्वेस्ट इन डैम्स एंड इरिगेशन, कि हम डैम्स बनाएं जिससे इरिगेशन हो सकेगा और प्रोडक्शन अच्छा होगा और हमारी इकोनॉमी गरीबी से उबर जाएगी। ऑब्स्टेकल, अब इसमें परेशानी क्या थी, बाधा क्या थी? तो पैटर्न ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन वाज टेकल्ड बाय लैंड रिफॉर्म। अब उस समय आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पर इंडिया में जागीरदारी प्रथा हुआ करती थी। जागीरदारी प्रथा में क्या होता था कि एक आदमी के पास जो जागीरदार होता था उसके पास खूब सारी लैंड हुआ करती थी, एंड ही हायर्ड टेनेंट्स टू वर्क, काम कराने के लिए वो क्या करता था? टेनेंट्स को हायर करता था और उससे बहुत कम वेजेज के अंदर वो लोग काम करवाया करते थे और उनको लंबे समय तक काम करवाते, बेगार उनसे करवाते थे। ठीक है। ये इसलिए क्या था, प्रॉब्लम ये थी कि हमारे यहाँ पे जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था वो प्रॉपर नहीं था। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? लैंड रिफॉर्म स्कीम चलाई। हालांकि ये स्कीम धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन उतनी सक्सेस नहीं हो पाई फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जितना होना चाहिए। ये ऑब्स्टेकल एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल था इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। एम क्या था
कि वन ऑफ द बेसिक एम वाज टू रेज लेवल ऑफ द नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम को बढ़ाया जाए। फॉर दिस पीपल हैव टू इंक्रीज सेविंग, अब इसमें कहा गया कि लोगों को सेविंग को इंक्रीज करना चाहिए इंस्टीड ऑफ स्पेंडिंग, खर्चा करने के बजाय, विच वॉज ऑल्दो वेरी लो, जो कि सेविंग भी बहुत लो थी। उसके पीछे बहुत रीजन थे, क्योंकि लोगों के इनकम नहीं थी इतनी कि वो सेविंग कर पाए। ठीक है, तो ये सारा आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान रहा। सबसे ज्यादा इसमें एग्रीकल्चर पर इन्वेस्ट करने के लिए कहा गया। ये प्लान किसने दिया था? के.एन. राज ने दिया था। और कब स्टार्ट हुआ? 1951 टू 1956, और इसमें सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर पर इन्वेस्ट किया गया। ओके स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक about the second 5 year plan. Okay students, have a nice day.